శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూనీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రంలో మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేర్లు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకొని వారి వారి కోరికలను, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్య అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரீதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம்பஜே என்று அந்த திருவேங்கடமுடையானை சேவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திற்காக பக்தர்களை வரவேற்பது திருமதி ஏ. அருணா. விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. இதற்கு முன் அர்ச்சக சுவாமி சங்கல்ப மந்திரங்களை கூறினார். நாமும் அதை கேட்டு நம்முடைய கோரிக்கைகளை விண்ணப்பிக்கலாம். இதோ வேங்கடமுடையானுடைய திருவுருவத்தை தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவிக்க இருக்கிறோம். இதோ பெருமாளை சேவித்தோம். இன்று மார்கழி மாதம் 28வது நாள் வியாழக்கிழமை, பூரம் நட்சத்திரம் பஞ்சமி திதியுடன் கூடிய நன்னாளிலே குருவாரம் என்கின்ற வியாழக்கிழமை பகவானுடைய திருக்கடைய கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் SVBC தொலைக்காட்சி மூலம் சேவிக்க இருக்கிறோம். முதலில் விஸ்வக்சேன ஆராதனை அர்ச்சக சுவாமி ஆரம்பித்து வைக்கிறார். பூர்ணம் சாஸ்திரகல்லோல சங்குலம் விஷ்ணு பக்ததகம் சுத்தம் வந்தே ஸ்ரீ விஷ்ணோர்ணவம் பிராணாநாம்யாம். ஓம் பூஹ ஓம் புவஹ ஓம் சுவஹ ஓம் மஹ ஓம் ஜனஹ ஓம் தபஹ ஓம் சத்யம் ஓம் தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி ஓம் ஆபோஜ்யோதிரசம் பிரம்ம பூர்வோஸ்வரம் அஸ்யாம் சுவிதோஸ்ய தேவஸ்ய பகவதோ நாராயணஸ்ய ஸ்ரீயப்பதே புருஷோத்தமஸ்ய ஸ்ரீபூநிலாசமேதஸ்ய ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசஸ்வாமினः வைவாகிகோத்சவகர்மாங்கம் ஸ்தண்டில பரிபரிஸ்நாதி सर्वोपनितंत्रपरिशुद्धतं शांततं स पुण्यावाचकर्म करिष्ये. ओम धारा सप्तशमान् शेषु सरस्वरिभूर्देषु अपोविरह्णन् प्रतिपादिष्ये. घृणं दत्तां शर्मा इदमापस्वा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शिवा शुद्धमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्यां मेध्यतमा मतां दरसाः पोता ब्रह्म अपोवादिकं सर्वं विश्वाभूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मतवापः सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छंदाविशापो ज्योतिषापो यजुषाप सत्यमाप सर्वा देवता भोर्भस्वराभोम अस्मिन् कुंभेंगा सिद्धमावाहयामि. एतेषु संवर्णे सहस्रं यज्ञाः पाशाभिधाः पुरुत्रा तेभ्यो नृस्यतोद विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमथ स्वस्य. अस्मिन् कुंभे वरुणमावाहयामि, प्रेयसमावाहयामि, रक्ताम्बरमावाहयामि, यादस्मृतिमावाहयामि,
करगे पांचभूतम् आवाहयामि समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि सर्वतीर्थं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिनां करिष्यमानसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं च दुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं सङ्केतं सुपुष्परद्वाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयोऽस्माद्दामेत्ताश्चेदात्तम् एतोत्सम्भोः वैराजन्ते स्वतन्निधत्तां प्रेषां दिशोऽभिधानामनादिः यामे स्थान् दिन्दान् धातु ओं भूः पद्माकरण्डले सक्षरमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी सुसक्सेन सेदमासनं विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणां तस्मान्यानुपासेत कर्मणान् विज्ञान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् सुविर्भारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्विरण्ज्ञातः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्थप्रोक्षतमस्तु प्रजापति प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेह शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवा अवन्तु नतो विष्णुर्चक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागुंसरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ऋतो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वत्सदेतो आवृतानि वत्ससि इन्द्रस्य यज्ञसखा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरादं तद्विप्रासो वन्यवाचार्ध्रागं दस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवति विषण्णो द्रविणोधारा आस्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्दत्कुरुता भविष्यं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेहेति यत्तदिघन्यं वस्येहेति तावत् गुरुविद्यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कृते अतिपुरोक्तिनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निधपरिविस्नास्वावतन्त्रविशुद्धं शान्ततं स पुण्यावाचं पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मण पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनेन्द्रोर्धस्वा स्वस्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्ठेमिस्तुनः बृहस्पति धातु ओं भूवति पुरोक्तिविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सन्निधपरिविस्नास्वावतन्त्रविशुद्धं शान्ततं स पुण्यावाचुनि स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मण स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्वाव्येनं सां सद्यां त्रिदेवं त्रिदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वृद्ध्यन्ताः सदञ्जीवं सेदस्वीराः ओं भूवति पुरोक्तिविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्टण्डितपरिविस्नास्वावतन्त्रविशुद्धं शान्ततं स पुण्यावाचुनि वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मवृद्धितां कर्मवृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मवृद्धितां कर्मणवृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मवृद्धितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामय अभोस्थानं ऊर्जितादनां मेरणाय चक्षुषे योपस्पदमार्धस्तस्य भार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो शिक्ष्या जन्मतः आपो दिनेधादिनः दिविश्रेयस्वान्तरिक्षेदस्य पृथिव्या सम्भव ब्रह्मोत्सवायत्वा पवमानस्व अर्जुनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोता समनात्मा पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्वायुवः यादवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कुतुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने वेदमन्तरां ब्रह्मतेन मुनीमहे भाभ्याहान् देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म मुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाति यस्यै बह्वीस्तन्वा विदपुष्टाः ते आमनन्दस्तमाज्येषु वयग्गुस्यां पतिवारीणां वैश्वानरोरसुभिर्माप्नातु वातः प्राणेनेश्वरमयो भूः द्यावापद्वीपसाभयभिः ऋतावरी यज्ञे मापनीतां बृहद्भिः सुविदस्रुभिः वरिष्ठैर्देवमन्मुभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनतां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म मुनीमहे यः पावमानेरध्येति ऋषिभिः समृतगमसं सर्वगं सभूतमश्नाति स इदं मातरिष्वणा पावमानेद्योऽध्येति ऋषिभिः समृतगमसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सत्परमदोदकं पावमाने स्वस्तिनीः सुजगाहि पयस्वतीः ऋषिभिः समृतोऽर्थः ब्राह्मणे समृतं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं
यतोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्वनिधि सामाप्नातु सोमस्वस्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिप्नातु मा यादवेदामोर्जयन्त्वाप्नातु तक्षयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातुबेहिजं षण्णास्तुद्यपदे षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्तिदेवार्तुजामार्जयन्तां दक्षिणाजान्तिस्मासाः पितरामार्जयन्तां प्रतीचान्तिशिखराः पशुवामार्जयन्ताम् उदीचान्दिशा भोषयो वनस्पतिमार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो दरादरे नागेभ्यमार्जयन्ताम् वास्तोऽस्पदे वृजानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्ते महे प्रजन्नो षष्ठस्य नियतद्पदेशं चतुष्पदे वास्तोऽस्पदे शग्मया सुखं सदा ते सक्षीमयि सैरण्या गातमत्या आवह क्षेमुद्योगे ब्रह्मणो यूयं पादस्वस्थभिस्सदानः अमीवः वास्तोऽस्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महत्वमहीयानात्मा गुहायां निधोऽसजन्तोः तमः कथं वसति वेदशोके धातुप्रसादान् महिमानमीशं वर्णान्मयसक्षनान्म पुनः पादाजं समर्पयामि वर्णान्म यथाभासा गुडभारनिवेदयां ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోவிந்த. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக திருமுலை சாற்றுதல் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த பகவான் சஹஸ்ர நாமங்களை கொண்டவன். அந்த சஹஸ்ர நாமங்களிலே ஒரு நாமம் ஸ்ரீனிவாசாய நமஹா என்று. ஸ்ரீனிவாசாய நமஹா என்றால் பார்க்கடலை கடையும் பொழுது அதிலே மின்னல் போல தோன்றினாளாம் மகாலட்சுமி. தாமரையில் அமர்ந்திருந்த அவள் தனது இரு கரங்களிலும் தாமரைகளை ஏந்தி இருந்தாள். முனிவர்கள் வேத மந்திரங்களாலும் கந்தர்வர்கள் இன்னிசையாலும் அவளை சேவித்தார்கள். திக்கஜங்கள் தங்க பானைகளால் அவள் மேல் பன்னீர் சொரிந்தன. இந்திரன் அவளுக்கு சிம்ஹாசனமும் கடல் அரசன் பட்டு வஸ்திரமும் வருண பகவான் மாலைகளும் விஸ்வகர்மா நகைகளும் அளித்தார்கள். இவளை அனைத்து உலகிற்கும் அரசி என்று சொன்ன தேவர்களும் ரிஷிகளும் அவளுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார்கள். இப்படி இந்த திருமுலை சாற்றுதல் என்றால் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவிப்பதற்காக வந்திருக்கும் தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே இந்த திருமுலை சாற்றுதல். மண் பாலிகைகளில் நவதானியங்களை சேர்த்து பூஜை செய்கிறார்கள். அப்பொழுது தேவர்களும் ஆவாகனம் ஆகிறார்கள். அதைத்தான் திருமுலை சாற்றுதல் என்று கூறுகிறார்கள். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அந்த ஸ்ரீனிவாசாய நமகா என்ற ஒரு நாமத்திற்கு என்ன பலன் என்று என்ன பொருள் என்று பார்த்தால், அங்கேயே சுயம்வரத்தை நடத்த விரும்பினாளாம் மகாலட்சுமி. தேவர்களும் முனிவர்களும் ஆவலுடன் வரிசையில் நின்றார்கள். அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தன்னிடம் அனைத்து நற்பண்புகளும் இருப்பதாகவும் மகாலட்சுமியே தன்னை தேர்ந்தெடுப்பாள் என்றும் நினைத்தார்களாம். ஆக முதலில் தூர்வாச முனிவர் நின்று கொண்டிருந்தார். பெரிய தபஸ்வி ஆனாலும் கோபம் மிகுந்தவர். அதனால் அவரை நிராகரித்தாளாம் லக்ஷ்மி. அடுத்து நின்ற சுக்கராச்சாரியர் மகா ஞானி, ஆனால் வாயடக்கம் இல்லாதவர், புலனடக்கம் இல்லாதவர். அடுத்து நின்ற சந்திரனோ அளவில்லாத ஆசை உடையவன். கார்த்து வீரியாஜன் மற்றும் பெரிய வீரன், ஆனால் நிலையில்லாத செல்வங்களை நிலையென எண்ணி வாழ்பவன். சரத்குமாரர் போன்றோர் எப்பொழுதும் தவத்திலே ஈடுபட்டிருப்பார்கள். மனைவியை கவனிக்க மாட்டார்கள் என்று இதோ ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். स्वयं भरग्रेम तेम धाया नागराजमावाहयामि सहस्रेशमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि परिसरदेवताभ्यो नमः. इदमासनम् इदं पाद्यम् इदमर्घ्यम् इदमाचमनीयं सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि. हरि ओम. स्वस्ति नो इमेदामश्विना भगः स्वस्ति देवेन्द्रनरुणः स्वस्ति पूषामसरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतना स्वस्ति ये वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः
बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ते स्वस्ते आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानोः अद्या स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवा अवन्त्रिवः स्वस्ते स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्तिवत्थे रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धा मुनितिरेम सूर्या चन्द्रमसा आमिव पुनर्थाताघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्तेनन्तार्क्षमरिष्टिनीं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसकं समत्स्व बृहद्यसोनाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चिदाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे स्वभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். இப்படி ஒவ்வொருவரையும் அந்த மகாலட்சுமி ஆனவள் புறக்கணித்து கொண்டிருக்கிறாள். எப்படியோ ஏதோ ஒரு காரணத்தை சொல்லி அவர்கள் அனைவரையும் நிராகரித்து விட்டாள். இறுதியாக பகவான் எம்பெருமானுடைய முன்னே நிற்கிறாள். அவரிடம் அனைத்து கல்யாண குணங்களும் பரிபூர்ணமாக நிறைந்திருப்பதை கண்டாள். திருமகளே வருக என்றும் மகாலட்சுமியை பார்த்து சொன்னாராம். வருக என்ற ஒரு வார்த்தையில் அவளது இதயத்தையே கடைந்து கரைத்து விட்டார் திருமால். இப்படி அந்த பகவானின் அழகாலும் நற்பண்புகளாலும் இளமையாலும் கருணையாலும் வருகை என்ற வார்த்தையாலும் கூட ஈர்க்கப்பட்ட மகாலட்சுமி அவருக்கு மாலையிட்டு விட்டாள். அப்படி மகாலட்சுமியை சேவிக்கும் அந்த பரந்தாமன் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்ய இருக்கிறார். ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். இப்படி திருவேங்கடமுடையான் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் மகாவிஷ்ணு என்கின்ற அந்த மகாவிஷ்ணுவானவர் 108 திவ்ய தேசங்களிலே ஒவ்வொரு தலமாக தன்னுடைய நாமங்களை மாற்றிக்கொண்டு பக்தர்களுக்கு அருள் புரிகிறார். அப்படி இந்த தலத்திலே நாம் தினம் ஒரு திவ்ய தேசம் என்று பார்த்து கொண்டு வருகிறோம். அதேபோல் இன்றைய திவ்ய தேசத்திலே திரு கபீஸ்தலம் என்ற ஒரு தலத்தை நோக்கி நாம் பயணம் செய்து மானசீகமாக அங்கே உள்ள பெருமாளை செவித்து இங்கே கல்யாண உற்சவத்திலும் பங்கு கொள்ளலாம். இந்த தலமானது இந்திரத்யும்மன் என்ற பாண்டிய பேரரசன் எப்பொழுதும் பகவத் சிந்தனையிலே இருப்பவன். அகஸ்தியர் அவனை காண ஒரு சமயம் வந்த பொழுது தூர்வாசரும் வந்தாராம். வந்தவரை வரவேற்காததால் வந்தவருக்கு கோபம் வர மதம் பிடித்த யானையை பிறக்குமாறு சபித்தாராம் அந்த அரசனை. அவன் தன்னுடைய தவறை மன்னிக்கும்படி வேண்ட அப்பொழுதும் பகவானிடம் பக்தி இருக்கும் என்றும் காலை பற்றும் முதலியால் பகவானே நேரில் தோன்றி அருளுவார் என்ற சாப விமோசனமும் ஆகும் என்றும் சொன்னதாகவும், அப்படியே இந்த ஊரில் யானையாகிய கஜேந்திரனுக்கு பகவான் அருள் புரிந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ஹனுமனுக்கு ராமனாக காட்சி அருளியதால் கபிஸ்தலம் என்ற இந்த ஊரை அழைக்கிறார்கள். இதிலே பெருமாளின் பெயர் பெருமாள் கஜேந்திர வரதன், ஆற்றங்கரை கண்ணன், பஞ்சகிருஷ்ண க்ஷேத்திரங்களிலே ஒன்று. தாயார் ரமாமணி வள்ளி தாயார் பொற்றாமரையாள் என்று கூறுவார்கள். கதனாக்கிருதி விமானம், தீர்த்தம் கஜேந்திர புஷ்கரணி கபில தீர்த்தம், பிரத்யக்ஷம் ஹனுமான் கஜேந்திரன், மங்களா சாசனத்தை செய்த ஆழ்வார் திருமழிசை ஆழ்வார், ஆகம சாஸ்திரம் வைகானசம். அப்படி அந்த பகவானை நாம் சேவிக்கும் பொழுது எத்தனையோ நமக்கு அந்த பகவானுடைய அருளி செயல்கள் நினைவிற்கு வருகிறது. அந்த கூற்றமும் சாரா கொடுவினையும் சாரா, நீ தீ மாற்றமும் சாரா வகை அறிந்தேன், ஆற்றங்கரை கிடக்கும் கண்ணன், கடல் கிடக்கும் மாயன், உரை கிடக்கும் உள்ளத்து எனக்கு என்று திருமழிசை ஆழ்வார் நான்முகன் திருவந்தாதியிலே கூறியிருக்கிறார். காணியும் இல்லமும் கைப்பொருளும் ஈன்றோரும் பேணிய வாழ்க்கையும் பேர் உறவும் சேனில் புவித்தலத்தில் இன்பமும் பொங்கு அரவம் ஏறி கவித்தலத்தில் கண்துயில் ஓன் கால் என்று பிள்ளை பெருமாள் ஐயங்கார் இந்த பாசுரத்தை கூறிப்பெற்றுள்ளார். அதேபோல்
இங்கே நாமாக்கள் என்னவென்றால் ஓம் துவஷ்ட்ரே நமஹ, அதாவது வெவ்வேறு உருவங்களை ஆக்குபவரே என்று பொருளாம். ஓம் ஆத்ம மோகின்யே நமஹா என்றால் அடியார்களின் குற்றத்தை காணாமல் இருக்கும்படி பகவானை மயக்குபவளே என்று பொருள். ஓம் ஸ்தவிஷ்டாயை நமஹா என்றால் மிகவும் பருமனானவனே என்றும், ஓம் சர்வாங்க சுந்தரியை நமஹா என்றால் எல்லா அங்கங்களும் அழகு நிரம்பியவளே என்றும், ஓம் ஸ்தவிராயே நமஹா என்றால் எல்லா காலங்களிலும் இருப்பவளே என்றும், சர்வ வியாபின்யே என்றால் எல்லாவற்றிலும் வியாபித்து இருப்பவளே என்றும், ஓம் துருவாயை நமஹா என்றால் பல மாறுபாடுகளாலும் தன் ஸ்வரூபம் மாறாதவனாகவே இருக்க வேண்டும் என்றும், ஓம் பிராப்த யோகின்யே நமஹா என்றால் க்ஷேமத்தை எல்லோரும் பெரும்படி செய்ய விரும்புவர்களே என்றும், ஓம் அக்ரஹாயை நமஹா என்றால் புலன்களால் அறிய முடியாதவளே, ஓம் விமுக்திதாயின்யே நமஹா என்றால் முக்தி அளிப்பவளே என்றும், ஸ்ரீமதே ரமாமணி வல்ல நாயிகா சமேத ஸ்ரீ கஜேந்திர வரத பரபிரம்மணே நமஹா என்று அந்த எம்பெருமானுடைய நாமங்களை அங்கே இவ்வாறு கூறுகிறார்கள். இதோ இங்கே திருவேங்கடமுடையானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டு அடுத்ததாக நாச்சிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த கோவிந்தனை செவித்து கொண்டு அடுத்ததாக அர்ச்சக சுவாமியானவர் தன்னுடைய கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை ஆத்மரக்ஷைக்காக கட்டிக்கொண்டு அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை நாம் இப்பொழுது சேவிக்கலாம். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இந்த வியாழக்கிழமை நேத்தர் தரிசனத்தை கொடுத்த அந்த எம்பெருமானை சேவித்துக் கொண்டு கல்யாண உற்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா, திருவேங்கடவனே சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். வைவாகிகோத்சகர்மாங்கம் ஆகார ஹோமகர்ம ரிஷியே ஓம் ஏதோன்மிந்திரம் சபாஹாம் சுத்தம் சுத்தேன் சாம்னாஹாம் शुद्धैरुक्तैर्वाहा वृद्धांशं शुद्धाशीर्वाहान् मुक्तु मयि देवाद्रो नमाजन्ता मय्या येनोमानिगाहङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिभोजदामि उद्ध्वन्यमानमस्यामि ध्यां पाप्मानं भजमानस्यन्तु शिवानस्सन्त प्रदेश्च सन्ना माता पृथिवी तोकसाता होदह्यधरेण सौम्या कृणध्वगं रसना होतगं सदु अष्टाबन्धगं रसनाभिदहरं येन देवासोजन्न विश्व्याः जातवेद भुवनश्रेत हिंसतसोजनिष्यते भूः गदपदिगो गदयोन्यग्नि गदे समिद्धवतमस्यान्नं गदपरिस्वागत देवेभ्यो अभ्यमणप्रजानन् आयुर्दामरेमस्मादेः स्तोदीति अनुद्रोणे तत्सवितुर्वरेण्यम्बर्गो देवस्तिमे धियो न प्रचोदयात् ऐदेन मन्यस्वानमतेन मन्यस्वासरस्तेन मन्यस्वादेवसे तप्रभा ब्रह्मजज्ञानं पदं प्रसादश्रीमस्रज वेनावः सबुद्ध्यामासविष्टासश्चोणमदस्वः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि ओं भू प्रजातमावाहयामि ओं स्वापतामावाहयामि ओं भूर्भस्वरहणगर्मावाहयामि ब्रह्मणेन मायदमात्रं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमां सोमो विरङ्कर्मणं दातु साधन्यमित्यकं सभेमित्रश्रवणमेदास्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूरज्ञागमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमोन्मस्तेदमात्रं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागुंसुतामित्रलवस्तत्रिमं यज्ञमिजमान्तेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्ध्यतन्नागस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागुंसुतामित्रलवस्तत्रिमं यज्ञमिजमान्तेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्त वैष्णव्ये स्त यज्ञेः स्त वायुभूते स्त विष्णोर्मनसा भूते स्त यज्ञस्य पावने स्तः परस्य पवित्रेः स्त वैष्णव्यो देव सवितपस्वप्नात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसु सूर्यस्य रश्मिः विष्णुवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि दक्षिणतो विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमस्तो दत्तान् देवेभ्यो विष्णोऽस्तु भोसि ध्रुवासी सुवासी धानासी वनस्पत्यो देवेभ्यः सुन्दस्वाम्
ब्रह्मण्णव प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानजेहि ओम प्रणय सोमाप प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्ध्यत्तन्नागसुष्ठेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधा मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानजेहि ओम प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मण दित्येन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपास्पृश्या ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षोत्सवमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनभामि इन्द्राष्टनभाग्नेष्टनभामि समाष्टनभाग्नेष्टनभामि समाष्टनभामि अग्निशोमाभ्याष्टनभामि प्रजापतिष्ठनभामि ब्रह्मणेष्टनभामि इन्द्राष्टनभामि सुभ्यष्टनभामि मरुद्भ्यष्टनभामि रुद्रेभ्यष्टनभामि अपस्पृश्यावों श्री विष्णुष्टनभामि मित्राष्टनभामि वरुणाष्टनभामि आदित्येभ्यष्टनभामि सिभ्याष्टनभामि पुष्णेष्टनभामि कक्षाष्टनभामि सोमाष्टनभामि औपासने यज्ञाष्टनभामि ज्ञेतेष्वेहेभ्यो देवेभ्यष्टनभामि आद्यन्त्र प्रतिश्रयामि चरन्त्र प्रतिश्रयामि ज्ञे ज्योतिषि समित स्वाहा अमृत स्वारणुषि अंततम रक्षांतरधारादेह प्रतिष्ठा रक्ष प्रतिष्ठारादेह चिक्पति स्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्व स्वाहा वाक्पति स्वापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्व स्वाहा देवस्वा स्वेदापना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्व स्वाहा मूलाग्राभ्यङ्कृतं सर्षेत्वा अध्यक्ष अक्षति रमामे ज्ञेष्टिकाध्ययनं सन्ते काशजपं सहस्रं च आयुधं च नीतं च प्रेतं च अर्बुदं च निर्बुदं च ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदे नमः सोहसे नमः वृत्रसे नमः पंचरासे नमः कर्षे नमः वैश्वानराय नमः ऐते नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवसवितप्सुभा षष्ठितसहस्राणि तमक्षमर्भदमानया अयन्ति यद्मा आत्मा जातवेदस्तेनेतस्सपदे जास्मान् प्रजापशु ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनोऽग्नि ब्रह्मन् समिद्धम् आदास्ते आदस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नित्यादेशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा युक्तवः जातवेदपरस्तादग्ने दगर्मक्रियमाणं विधेदं त्वङ्भुजग्वेद शासकर्ता त्वयागाश्वान् पुरुषात् सनेम स्वाहा यादृश्य निबद्धेऽहं विदृणीयति तान्तासारयामः स्वाहा सुगमराधिन्ये देव्यै स्वाहा प्रसादिन्ये देव्यै स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा तत्येन त्वाभिहार्यान्तस्ते वक्ष्या अग्नेय स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपस्पृश्य ओं श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिशेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्याचं सावित्र्याग्रत्वाव्याहति ज्योति ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवदेवताप्रासाभिः ओं भूति पुरोक्तिविष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सर्वद्रव्ययातनात् प्रायश्चित्तात् सम्मतो देवादिवैष्णवं मोषे ऐते नमः निस्वा नमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवसवितप्सुभा ओं मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यात् धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो अवधानुस्ते इन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षरादिग् स्वाहा तद्विप्रासो नमोजार्ध्वागं दशन्ते विष्णोरत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐते नमः गुस्थाः नमते नमः गुस्थाः सरस्ते नमः गुस्थाः देवसवितः प्रासाभिः आनन्दं तस्याग्ने भाजे एव माः मोदः प्रमोद आनन्दः मुष्कयोर्नितश्रुवः स्तुत्यैव काम्यस्य तृप्याणि दक्षिणानां प्रतिगृहे मनसश्चित्तमागोदिं वाचस्तत्यमुषीमहि पशूनां रूपमन्यस्य यशस्त्रीयतां मयि घृणाहि घृतवती सवितराधिपत्यै पयस्सुधीरन्तिराशानोऽस्तु ध्रुवादिशां विष्णुपत्निहोरास्यैषा नासातोजा मनोता बृहस्पतिर्मातरिस्रोतवायुस्सन्धवाना वाता अधिनो गृह्णन्तु स्रोतस्मार्तादिङ्गर्मणिखलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः तस्मृतिनदीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्तिदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नोर्नवम् अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य
अचिन्त्या परिशक्त्या भ्रियमाणस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रमाणानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथिव्यक्तेजो वायुवाकाशाहङ्कारमधव्यक्ताक्ष सप्तावृणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्दाष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल नितल प्रद महातल सातल तरातल सप्तपादालाख्य सप्तलोकानां ऊर्ध्वभागे भूलोक भूर्लोक स्वर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षड्लोकानाम् अधोभागे महानारायमाणस्य फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणाम्नि मण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दण्डशुण्डादण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेवपरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरतिवर्णवायुकुबेरीशानाख्याष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षसरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रवंशसागसान्मुनिपुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमलेशुक्तमद्रिक्तमद्विन्द्यपर्यात्राख्य सप्तपर्वतविराजिते भारत किं पुरुषहारीलावृतभद्राश्वकेतु कमालकरमणककुर्वर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवराकार 50 योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्तिकुरुक्षेत्रादि सम्भूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु राशिप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामासङ्घातपकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्यतलेश्वरमण्डलपर्यन्तं कृतराशेर्वत्सहस्रावसाने एकैकवापकृष्णक्रमेण सर्वराशपकृतकाले श्रीहरिलोके निवासिध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमात्राप्त आप्तोर्जामशान्तवनवाजपेय पौण्डरिकाश्वमेधादि शतकृतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूः अन्तर्याम्यर्चावतारस्वरूपैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविशिष्टादिव्यक्तगृह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूः अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकररासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चवन अपनो औरुव वैदिल पंचार्षे प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सर्वांगना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनन्तगुणात्मकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्यारासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सार नैध्रिव त्रयार्षे प्रवरान्वित
काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैरुदां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं चिकीर्ष्यां सालङ्कृतां मां साध्वीं श्रीलाय समेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धे विश्वम्भरा विश्वरूपा साद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। நமோ பகவதே வாசுதேவாய். எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் மகாசங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த மாங்கல்யங்களை சுத்தப்படுத்தி மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு அதை புஷ்பங்கள் திருத்துழாய் போன்றவைகளால் பூஜை செய்கிறார். இன்று மார்கழி மாதம் 28வது நாள். அந்த 28வது நாளிலே ஆண்டாள் எப்படி நோன்பு நோற்று அந்த தோழிகளை அழைக்கிறாள் என்று பார்க்கலாம். முதலில் பாசுரத்தை பார்ப்போம். கறவைகள் பின் சென்று காணன் சேர்ந்துண்டோம், அறிவொன்றும் இல்லாத வாய்க்குலத்து உன் அன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம், குறையொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உன்னன்றோடு உறவேல் கொழிக்க வழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ மண்பினால் அன்பினால் உன் அன்னை சிறு பேரழைத்தானவம் சீறி அருளாதே இறைவா நீதாராய் பறையேலோர் எம்பாவாய் என்று கூறுகிறாள். அதாவது அந்த ஆண்டாள் என்ன குறிப்பிடுகிறாள் என்றால், பகவானை செவிக்கலாம், கன்று பசுக்களுடன் கானகம் சென்று களிப்புடன் உண்ணுவோம், அந்த அளவே அறிவோம், அகன்றி அறியாமை மிகுந்த ஆயர்கள் நாங்கள் செய்த புண்ணியத்தால் புனிதன் உன்னை பேராய் பெற்றிருக்கிறோம், குறையில்லாத கோவிந்தா உன்னுடன் உறவான உறவு இந்த இனி ஒருபோதும் மாறாது, கள்ளம் அற்ற காரிகையர் நாங்கள் அன்பு மேலிட்டால் அளவில்லாத அற்ப பெயர்களால் உன்னை அழைத்து விட்டோம், மருள் கொள்ளாதே அருளாளா, அதன் பொருட்டு கொட்டும் முரசை கொடாமல் இருந்து விடாதே என்று கூறுகிறாள் அந்த ஆண்டாளானவள். அப்படி என்றால் அந்த கறக்கும் பசுக்களுக்கு பின்னே தொடர்ந்து போய் காட்டை அடைந்து உண்ணா நிற்கும் நாங்கள் ஞானம் சிறிதும் இராமல் இருக்கும் இடை குலத்திலே உன்னை பிறவியால் பெருமளவு பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளவர்களாகிறோம். சிறிதும் குறையின்றி விளங்கும் கோவிந்தனே, எமக்கு உன்னோடு உள்ள உறவானது எந்த விடத்திலும் யார் வழிக்க முயன்றாலும் அழியாத சர்வேஸ்வரனே, நீ நடந்து கொள்ளும் வண்ணமொன்றும் தெரியாத சிறு பிள்ளைகளான நாங்கள் உன்னிடமுள்ள பிரீத்தியினாலேயே இனமான பெயர்களை இட்டு உன்னை அழைத்து அனைவத்திற்கும் கோபித்து கொள்ளாமல் பறை முதலியவற்றை தந்தருள்வாய் என்று கூறுகிறார்கள். அப்படி என்றால் அதனுடைய உள்பொருள் என்னவென்றால், பகவானுடைய மாயவனை என்ற பாசுரத்திலே ஆச்சாரியன் தத்துவ ஹித புருஷார்த்தமா உபதேசம் செய்யும் வகை சொன்னது பெற்றது. பிறகு பாஞ்ச நாளிகை பேரினை எம்பெருமானை ஆராதிப்பது என்று சொல்லியாயிற்று. இப்பாசுரத்திலே அனுஷ்டானம் செய்து வரும் சிஷ்யர்கள் ஆச்சாரிய உபதேசத்தை பின்பற்றி பிரபத்தியை அனுஷ்டிக்கும் முறை கூறப்படுகிறது. கறவைகள் பின் சென்று கானம் சேர்ந்துண்ணோம் என்று கர்மயோகம் செய்ய இயலாமையை சொல்லி அறிவொன்றும் இல்லாத என் ஞானயோகம் பக்தியோகம் ஒன்றுமில்லாமை சொன்னதாம். ஆக கார்பண்யம் கூற பெற்றது. கறவைகள் இத்தியாதியால் மாடு மேய்ப்பதன் என்றும்
தங்கள் விருத்தியை சொன்னதால் அனுகூல்ய சங்கல்பமும் அறிவிக்க பெற்றதாம். புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றும் இல்லாத உறவேல் நமக்கிங்கொழிக்க ஒழியாது என்றவற்றால் இதுவரையில் படிப்படியாக நடத்தி வந்த அந்த எம்பெருமானிடம் தமக்கு உள்ள சுவாமித்துவம் என்னவென்ற சம்பந்தத்திலே விசேஷத்தை, அதாவது ஒழிக்க ஒழியாமையை சொன்னதால் அவன் அவசியம் காப்பான் என்ற மகாவிஸ்வாசம் பொழிந்தமையாம். சிறு பேழை அனைத்தனவும் இனி பிராத்திகூல்யத்தின்படியே பிரவர்ச்சியத்து யாமையை பகர்ந்தாய் என்றும் நீ தாராய் பறை என்று அந்த ருத்ர லவணமும் பரம சமர்ப்பணமும் சொல்லிற்று. இப்படி உந்தனோடு வேல் நமக்கு இங்கொழிக்க வழியாது என்று நித்திய சேஷத்துவம் சந்தானம் அனுசந்தானம் வழங்கிய ஆத்ம திஷேமமாகிறது பிரபத்தியம் என்றும் பணிகிறாய் என்று அர்த்தம். அப்படி என்றால் இந்த பகவானுடைய திருச்செயலுக்கு நாங்கள் தெரிந்தோ தெரியாமலோ எங்களுக்கு உகந்த பெயர், எங்களுக்கு வாய்க்கு வந்த பெயரை உன்னை போற்றி அழைத்தோம். நீ ஒன்றும் கோபம் கொள்ளாதே. ஏனென்றால் கல்வி அறிவே இல்லாத இருந்தவர்கள் நாம். அப்படிப்பட்டவர்களை நாம் எப்படி எங்களை மன்னித்து விடுவாய் என்று கூறுகிறார். இவ்வாறாக அந்த திருப்பாவையிலே 28வது பாசுரத்திலே நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ மாங்கல்யங்களை சுத்த ஜலத்தால் அலம்பி அதற்கு மஞ்சள் குங்குமம் இட்டு மற்றும் புஷ்பங்கள் அக்ஷதையால் பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் திருவேங்கடமுடையான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று குருவாரம் என்கின்ற வியாழக்கிழமை பஞ்சமி தீர்த்தம், அதாவது பஞ்சமி நாள், தியாகராஜ சுவாமியினுடைய ஆராதனை நாள் மற்றும் வியாழக்கிழமை எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையான் நமக்கு, அதாவது திருநாமத்தை நேத்திர தரிசனத்தை கொடுப்பவன், புலங்கி சேவையிலே ஈடுபடுபவன், திருப்பாவடை சேவையையும் நமக்கு அளிப்பவன். அப்படிப்பட்ட அந்த பரந்தாமனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ இப்பொழுது மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. நாம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் இந்த நிகழ்ச்சியை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானுடைய அனுகிரகமும் நாச்சிமார்களுடைய அனுகிரகமும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சேவித்துக்கொண்டு லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தாத்ரி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை சேவிக்கலாம். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிவு பெற்றது. அதை கொண்டு சென்று இரு நாச்சிமார்களுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க இருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த காட்சியை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. முகம் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேத அன்வசృஜந்த தான் ஹஸ்தே குருதா அதா சீதா சாவித்ரி சுமங்கலீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதவஸ்யதா சௌபாக்யமத்வை தத்வாயாதாஸ்தம் விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீ ஆணிர்யாய ஸ்ரீ அம்பஜோ சருத்ருभ्यो தாதி श्री अम्बसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्यासपितां शत्रौ श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्त्वामगं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अदा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं मधुरिमागुं समेतपश्यता सौभाग्यमत्वै तत्त्वायादास्तं परेतना मेदिनी देवी वसुन्धरा स्यादसदा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु।
तपसुवा अग्ने तपदमो देवता नागम सोहस्य प्रजां च तमत भाषात् तदेकं राजावरुणो न मन्यधामधे गुस्त्रीपुत्रमहन्नराधात् स्वाहा इमाम् अग्निस्त्रायताङ्गारभत्य प्रजां च तमत भाषात् तदेकं राजावरुणो न मन्यधामधे गुस्त्रीपुत्रमहन्नराधात् स्वाहा इमं मे वर्णस्य देहमद्वाचमडिया त्वां वत्सराचके स्वाहा तत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाशा स्तेजमानो हविर्भिः अहेडमान अवर्णे हवो दर्शं समान आयुः प्रमोषि स्वाहा तन्नोऽग्नेवर्णस्य विद्वान् देवसेडवयासीष्टाः यजुष्टा वनितमसोहिजानो विश्वाद्वेषागं सुप्रमुच्य स्वाहा तन्नोऽग्ने उमो भवति निधिस्वास्यावसोऽव्यष्टौ अवयक्षणो वर्णगम्राणो विहिमृडिगं सुहोणेति स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हविमुषेयानो देहि वे जग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अयते नमकस्ताः नमते नमकस्ताः सरस्ते नमकस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवति पुरोक्तिमिष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं लाजहोमं होष्ये ऐतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्तेन मनस्वा देवसवितः प्रसुवा इमां लाजान्त्यविहार्य इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्ति संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदेनागमृषेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेण दस्तामुतागम् अनु विश्वावदत्वया व्यंधारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबब्रूते अग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोहदेनागमृषेणोत्पर्जन्यस्य सुष्मेणो दस्तामुतागम् अनु विश्वावदत्वया व्यंधारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा वगुं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐते नमकस्ताः नमते नमकस्ताः सरस्ते नमकस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवतिपुरोक्तिनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं स्वरमन्त्रपर्यातननात्तप्रायश्चार्थमतो देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा ओं मतो देवाः वन्दनोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गवादाभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यतो वृतानि पश्ये इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिव्यचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमोजार्ध्वागं दशमिन्ते विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वस्वाहा ऐतेन नमकस्ताः नमते नमकस्ताः सरस्ते नमकस्ताः देवसवितः प्रासावीः ओं भूवतिपुरोक्तिनिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं परिष्ठा तन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः प्रसवा यदस्य कर्मणोत्तिरिदं विद्यान्यून महाकरम् अग्निस्य षष्ठास्तं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वतः हतावतीनाङ्कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नदाय स्वाहा अग्ने नमदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रिवादिष्टं सर्वत्रिवादानिष्टं देवतमुष्मे स्वाहा अग्ने षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मा इन्दाभूत अग्निसत्पुनराः जातवेदावचने स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात् पुनेन्द्रबृहस्पति पुनर्मेषाज्मं चक्षात् मुक्षः स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशिष्ठेभ्यः स्वाहा वेदन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा देवराध्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सरसमृद्धे स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वषट्करमत्यनोक्तं यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यज्ञपर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा कदा देवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठां स ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानागमसामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो यज्ञपर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा कदा देवान् स्वाहा स्वस्तिनीन्द्रो दस्वासनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्ठेमिस्सनः बृहस्पतिर्दधात स्वाहा यतीन्द्रो बीजमुनो दोद्वाद्रोताः
विशाखेन स्वाहा यदो शेषदिमे स्वाहा समिदस्तेजोस्तेजोमेदे स्वाहा यमसदिमे मृत्युर्मभाय स्वाहा सूर्यदिमे चक्षुर्मभाय स्वाहा सोमसदिमे चित्तमेभाय स्वाहा वायोर्धिमे प्राणान्मेभाय स्वाहा ब्रह्मणोधिमे बुद्धिमे भाय स्वाहा सप्तयज्ञे समिद सप्तः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रः सप्तात्वा जयन्ति सप्तयोनिरावरण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भक्तक स्वाहा वेदर्भक्तक स्वाहा देवर्भक्तक स्वाहा देवभक्तक स्वाहा वोषधुर्सुन्दर्वास च भक्तक स्वाहा अग्नि जीर्णं वेद जीर्णं देव जीर्णपति जीर्णं वोषधुर्सुन्दर्वास च जीर्णक स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रः सप्तधात्वा जयन्ति सप्तयोनिरावरणः घृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् शब्दतेन पूर्णमावतिञ्जमनसा प्रजापतिः स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुद्धिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधनसन्दरास्य वेदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्षीमस्तु तृप्यन्तां एतेन मुखस्तान् मतेन मुखस्तास्तेन प्राताभिः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमदि पूर्णमे भूयात् प्राचाहानि देवार्च्या मार्जन्तां सर्वान् समूच्य ग्रन्थिं विसृज्य अभ्यः प्रोक्त आप्यायन् त्वामिति जुहोति आप्यायन् त्वामा बभोषधियो मृषदां प्रदेशश्च दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रियायुषं जमदग्ने प्रियायुषं दीर्घायुषाय बलाय शताय तदन्त्यवर्तते प्रियायुषम् दीर्घायुषाय बलाय शताय तदन्त्यवर्तते प्रियायुषम् आपोषिष्टामि अभोष्टानं वोज्यदादनां हेरणाचित्ते योपस्वतमर्धस्य बालितेन यथतिरिव मात्रादस्मारकमापो शक्त्याज्मुधा आपो जनयथा जनः तेज्ञे तेजस्विनाहं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासनानि कृन्तु वै आदेवान् प्रपन्नस्मै प्रायश्चित्तान् निश्चयानान् मम कर्मात्मानि वै यान् तेषां निश्चयानां श्रीकृष्णान् स्मरं परं कायेन मातां सेन्द्रावद्यात्मनापति स्वभात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லாஜ ஹோமம், பிரதான் ஹோமம், அஞ்சனமிடுதலை சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் இப்பொழுது காண இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே எழுந்தருளிய ஆண்டாள் 143 பாசுரங்களான நாச்சியார் திருமொழியையும் 30 பாசுரங்களான திருப்பாவையையும் எழுதி திருப்பள்ளி எழுச்சிக்கு சுப்பிரபாதத்திற்கு பதிலாக திருப்பாவையையும் அந்த நாச்சியார் திருமொழியும் பாடுகிறார்கள். இப்பொழுது அந்த நாச்சியார் திருமொழியிலே வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை 11 பாடி அதனுடைய அர்த்தத்தை, அதாவது தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலமே இந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியம். நாளுக்கு ஒரு பாசுரமாக பாடி 30 பாசுரங்கள் பாடி காத்தியாயன் விரதத்தை மேற்கொண்டு அதன் பிறகு அந்த எம்பெருமானையே திருமணம் செய்து கொண்டதாக கனவு கண்டு அந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை
தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கனவின் வృத்தாந்தங்களை கூறுகிறாள். இதைத் தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களின் கழுத்திலே உள்ள மாலை எம்பெருமானுக்கும், எம்பெருமானுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலை ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கும் மாற்றப்படுகிறது. புஷ்பங்களை உபயோகித்து அந்த மாலா கைங்கரியத்தை செய்தவர் பகவான், அதாவது பெரியாழ்வார் என்ற விஷ்ணு சித்தர். தன்னுடைய மகளுக்கும் அந்த மாலைகளை தொடுக்க கற்றுக் கொடுத்தார். இதோ இப்பொழுது அந்த மாலையானது ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கப்பட்டது. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. அதன் பிறகு பகவானுடைய கழுத்தை அலங்கரிக்கிறது. பகவான் அந்த மாலை அணிந்து கொண்டு திரும்பவும் பூமி பிராட்டியுடைய கழுத்திலே அணிவிக்க செல்லுகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த பூமி பிராட்டியானவள் மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை மீண்டும் பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறாள். பகவானுடைய திருத்தோள்களை அலங்கரிக்கிறது மாலையானது. இப்பொழுது அந்த சிம்ஹாசனத்திலே ஸ்ரீதேவியையும் பூதேவியையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே அமரச் செய்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கட்டாட்சம் கிடைக்க வேண்டும் என்று செவித்து கொண்டு நேரடி ஒளிபரப்பில் பங்கு கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கு கூட பகவானின் அனுகிரகம் என்றென்றும் கிடைக்க வேண்டும். இதோ இப்பொழுது நாம் காண இருப்பது அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம். இத்துடன் என்னுடைய வர்ணனையை முடித்துக் கொள்ளுகிறேன். பகவானுடைய அனுகிரகத்தை சதா சர்வ காலமும் பெறலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।